Let's have some coffee. Hello guys, it is 14 January 2022 and I would like to wish you all a happy Makar Sankranti. तो आज मज़ा आने वाला है, आज पतंग उड़ाने वाले हैं. I always love flying kites. So बचपन के टाइम पे दिवाली ख़त्म होते ही पतंग उड़ाना शुरू कर देते थे. मतलब संक्रांति आया है तो पूरी सूरत टैन होके काली होके एकदम हो जाता था. But then things have apparently changed now. कम पतंग दिख रहे हैं आजकल. एरिया विच आई लिव इन यहाँ पे थोड़ा कम उड़ाते होंगे पतंग. इज़ व्हाट आई एम गेसिंग. बालकनी से तो नहीं दिख रहे, टेरेस पे गए तो क्या है क्या नहीं है मालूम होता. तो फर्स्ट नो पहले रेडी हो जाएंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे. चलो. सो लेट्स डू अ ट्रांजिशन शॉट. 3, 2, 1. तो कैसा था, मौत डाल ले रू नहीं. So apparently this is almost around 4 to 5 kg. So this was given by my father's mama to him. So let's know the significance इसका क्या है. Hi guys, how are you? Happy संक्रांति. ये चरक ये मेरे मामा जी बनाए थे. उनसे कम 14-15 साल से है ये मेरे पास. के ऊपर देखिए देश प्रसाद. लारी का पिस्टन, लारी के अंदर जो पिस्टन रहता है वो खराब होते हुए जो रिजेक्टेड पिस्टन है लेथ मशीन पे बनाए हुए मशीन है. चरक करीब 15 साल से है और मैं समझता हूँ ये और एक 50 साल भी रहता हूँ. मैं पूरा एल्यूमिनियम है. ये शायद ही दुनिया में एकलौता चरक है जो पतंग उड़ाने के लिए. इसको क्या पतंग बोलते हैं मालूम? गुद्दा पतंग. अब जिसको तेलुगु आता है उनको मालूम है क्या बोल रहा हूँ. चलो उड़ाएंगे पतंग. Hey Ramya. Hi all. Happy Sankranti, Happy Lori, Happy Pongal, Happy Bihu. Have fun, enjoy your festival and the extended weekend. So what does this festival mean to you, man? So, okay, Rahul has already told you in his previous vlogs. I am from Bangalore, I'm a Kannadiga. So for us it's Makara Sankranti. So for us it's basically a harvest festival. So all your harvest gets done by Sankranti, by January. So they accumulate everything, gather around in a place and try to worship the god for giving a very good harvest. And then what generally happens in the evening the previous day, people gather. I mean this happens in the villages, which I am not much aware of because we were mostly in the cities and all that, but of what my parents used to tell me, like evening they gather around in one place. Basically Sankranti for us is what we do, there's lots of sugar cane. So the sugar canes, it's a season of sugar cane for us. And Mandya, which is a place near to Bangalore, that's apparently the highest sugar cane exporter in the entire Asia. So what happens, even way before Sankranti for us, sugar canes will be in the market. So we eat. As kids, my memories were where we used to eat a lot of sugar canes and then the tongue gets cut and then like towards the evening we couldn't eat food, but still we used to continue eating sugar cane. And then I'm not sure if people here or people anywhere are aware, there's something called avarekai, tugarikai. This is all like the basic form of your tuvar dal, and before that the processed, the original form of that. So we boil a lot of sweet potatoes and then groundnuts and lots of avarekai, and we eat the entire day. We eat lots of sugar cane. Basically because it's winter and then we are transitioning towards summer. But this season is basically very cold. You have your dry skin and your body is very dry. So I think that's the significance where what we do is jaggery, til and dry coconut. What we consume a lot of it. Also we distribute it to all our neighbors. I'm quite surprised here. I'm married for 5 years now. Like in Hyderabad, it's kites. The first year of our marriage, when people started flying kites, it was quite surprising. Because for us in Bangalore, kites we fly towards July where there's a lot of wind and all. But
each city and each culture has its own significance, and here the culture, they cook a lot of non-veg. They put camps on the terraces, you know, people come together, gather, and then they fly kites, they enjoy with the family, they have fun. At the end of the day, the feeling is all the same. It's just to have fun with your family, with your friends, get together, put camp on the terraces, fly kites, enjoy, guys. So I hope you enjoyed the time lapse. So one thing that has always fascinated me was पतंग उड़ाना, because ये टाइम पे जितना हवा आता, और there's a reason why, right, कि यही टाइम पे पतंग उड़ाना, they chose this time to fly kites. ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा नॉर्मल उड़ा दिए पतंग, पहले तो कन्ने वन्ने बनना आना, उसके बाद पेंच लड़ाना भी आना. पेंच का सीन क्या रहता बोले तो ऐसा नहीं कि you know पतंग उड़ा दिए, पेंच का पे डोरी मिल गई, कुछ कटे तो कट गई, बचे तो बच गई. नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज़. उसका भी एक तरीका रहता पेंच लड़ाने का. रम्या, तेरे को पतंग उड़ाने आता रे? एकदम किराक व्यू है ना मेरे टेरेस से. सो अपेरेंटली दैट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री, एंड आई डोंट थिंक यू कैन सी बिकॉज वाइड एंगल में है. बुद्धा स्टैचू भी है. अपेरेंटली इट वाज अ मोनोलिथ. बाद में जब इंस्टॉल करे थे तो वो नीचे गिर गया था और हाथ टूट गया था स्टैचू का, एंड देन दे हैड टू फिक्स द हैंड अगेन. सो दैट्स द रीजन इट्स नॉट कॉल्ड अ मोनोलिथ, बिकॉज ऑफ कोर्स वो सेकंड पीस लग गया. जनवरी 14 और ऑलरेडी गर्मी होना स्टार्ट हो गई. तो अपने पास इधर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहता, बिकॉज नॉट कंपेयर टू अदर प्लेसेस, बट देन यहाँ के लिए वंस यू यूज्ड टू दिस प्लेस यू विल फील प्रीटी हॉट इधर. तो अपने पास ऑल वेदर्स वैसे ही है. जब बारिश होती, दवा के बारिश होती, ठंड के दिन में भी दुनिया का ठंडा होता, और धूप के टाइम पे तो दंडम हो जाता. तो वर्क फ्रॉम होम होने से क्या हुआ बोलते, घर से निकल रहे नहीं, घर में ही रह रहे. अब पीपल आर गोइंग टू ऑफिस, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू, बट देन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ज़्यादा बाहर जा रहे नहीं तो मालूम नहीं हो रहा, बट फिर भी घर में ह्यूमिड होके गर्मी होना स्टार्ट हो गया. संक्रांति इज़ लाइक द डे वेयर द विंटर एंड्स एंड टुवर्ड्स द एंड इट गेट्स रियली कोल्ड. तो अभी सो करेंटली टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. कोल्ड वेव चल रहा, नॉट ओनली इन हैदराबाद तेलंगाना, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में भी कोल्ड वेव चल रहा. बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग फॉर मी ऑलवेज इन संक्रांति. दैट्स व्हाई इट्स प्रॉब्ली स्पेशल फॉर मी, बिकॉज आई एम एक्साइटेड टू फ्लाई काइट्स. एट द सेम टाइम द विंटर इज एंडिंग. दैट्स माई फेवरेट सीजन. आई नो बहुत लोगों का फेवरेट सीजन होगा. सो द विंटर एंड्स एंड टुवर्ड्स शिवरात्रि, जैसे शिवरात्रि तक आ जाता वो ट्रांसिशन खत्म हो जाके और समर शुरू हो जाता. समर में कुछ भी करना दिल नहीं बोलता वही. तो हम लोग ट्रिप भी जाना सोचे थे. वी थॉट विल गो टू चिराला और गोवा समवेयर, बट देन 2,60,000 केसेस आए इंडिया में कोविड के. सो बेबी को रख के वी जस्ट डोंट वांट टू ट्रैवल, राइट. वन मोर थिंग, इट इज़ टू विंडी. अब मैं एक्सटर्नल माइक लगाया, सो आई होप उतना ज़्यादा विंड नॉइज कैप्चर नहीं हो रहा. हैदराबाद का सीन क्या रहता बोलते, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करते इधर संक्रांति. टेंट लगा के दारू वारू फुल अल्कोहल रहता, एंड नॉन वेज तो ऑफकोर्स रहता ही रहता. लॉट ऑफ पीपल डोंट कुक नॉन वेज ऑन संक्रांति, बट हैदराबाद में येस, यहाँ पे नॉन वेज रहता. दारू चिकन मटन खा के फुल डांस वांस का सीन रहता है इधर फोक सॉन्ग्स पे. ओल्ड सिटी में क्या करते बोले तो जैसा अंधेरा हो जाता, जैसा रात हो जाता, तो शूटिंग लाइट्स लगाते बिल्डिंग पे. जैसा अभी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा शूटिंग लाइट्स लगाते टुवर्ड्स द स्काई, एंड लिटरली लाइट में पतंग उड़ाते. दैट्स हाउ क्रेजी एंड दैट्स हाउ सीरियस दे आर. एंड नो, आई एम नॉट किडिंग. अगर हो सका तो अगर मिला कुछ तो मैं फोटो डाल तो अभी धूल पे डोल सिटी में कैसा रहता अभी. तो लिटरली वहाँ पे कैसा रहता बोले तो रात में भी इट विल बी लाइक अनदर डे, बिकॉज उतना लाइट रहता. लिटरली हर छत पे लाइट रहता, एक दो नहीं, लाइक पूरा छत पे शूटिंग लाइट्स लगा के दे फ्लाई काइट्स. दैट्स फकिंग अमेजिंग. दैट्स समथिंग वर्थ सीइंग. करेंटली ये संक्रांति अपने पास थोड़ा ठंडा चल रहा, ज़्यादा लोग उड़ा रहे नहीं. ऑफ कोर्स लाइक यू कांट ब्लेम पीपल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कोविड केसेस, एंड अपेरेंटली एज पर द गवर्नमेंट ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गया. यू सी मेरा टेरेस है लिटरली खाली है, like nobody is flying kites.
थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा चलता रहता बिकॉज देयर इज अ मिक्स ऑफ कल्चर इधर. सो अ लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेट ऑन 14th एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेट ऑन 15th. सो आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर इन द मॉर्निंग एंड शी टोल्ड मी दैट अपेरेंटली द फेस्टिवल इज टुमारो. दिस हैपेंस एवरी ईयर. तो अपने को बचपन से क्या है भाई, जनवरी 14th बोलते त्यौहार, तो अपन जनवरी 14th को ही मनाते. सो सिंस दे आर डूइंग भोगी टुडे, दे विल बी सेलिब्रेटिंग संक्रांति टुमारो. सो दैट मीन्स पूरे हैदराबाद या पूरे तेलंगाना में संक्रांति 2 दिन धूमधाम से मनाई जाता. दैट इज 14th एंड 15th. एंड वन मोर थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस फेस्टिवल इज बहुत सेक्युलर है. सो संक्रांति के टाइम पे देयर इज नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, नथिंग. सब हम लोग भाई लोग मिलके पतंग वतंग उड़ा के एंजॉय करते. सो दैट्स समथिंग रियली नाइस. आई एब्सोल्युटली लव इट. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपके पास संक्रांति कैसे सेलिब्रेट होता है एंड हाउ डू यू एंजॉय द फेस्टिवल. सो गेस्ट्स आए साहब लोग. हैप्पी संक्रांति भाई. आज संक्रांति में बैगन, आज भोगी है. ये मैडम भी आए, देखो हाय बोलो ब्लॉग को. हाय. अरे वहीं पे जाओ. हेलो बेबी. हाय बेबी. पतंग उड़ाते राहुल ने वहीं पे जा रही. ऑफ कोर्स. सेटल हो गए बच्चा, पतंग उड़ाते क्या.